Hello dear students, today we'll talk about the exercise 13.3. Today we'll start from the question number 6 and we'll solve the further question. So now let us see the question number 6. What is he telling us in the question number 6? Let us see. देखिए in the question number 6 they have given us the slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of the whitewashing the curved surface at the rate of 210 per 100 meter square. Means they have given us the slant height and the diameter of the conical top. So firstly let us make the conical tomb. This is our conical tomb. The diameter and the slant height is given, not the height, slant height this. ठीक है, what is the diameter of the conical tomb? 14 meter. And what is the slant height? The slant height is 25 meter. ठीक है, and we have to find the cost of the whitewashing the curved surface area. तो देखिए let us see what is given to us. diameter कितना है हमारे पास 14 मीटर. देन डेफिनेटली व्हाट विल बी द रेडियस? जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास 7 मीटर. दे हैव गिवन अस द स्लैंट हाइट L विल बी इक्वल टू 25 मीटर. अब देखो मुझे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को वाइट वॉश करना है, तो फर्स्टली विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, आफ्टरवर्ड्स विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. तो लेट अस फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉम. CSA ऑफ टॉम है ना, the CSA of conical tomb. What is the formula for the curved surface area? Pi RL. So let us see what is the value of pi. Have they given us? No, they have not given us any value. So we'll put the 22/7. R radius is 7 and the slant height is 25. So we are writing 25. 7 से 7 cancel. Let us multiply. 25 2 जा 50. 50 की 0 carry 5. 25 2 जा 50. 50 और 5 55. तो 550 meter square. That is the CSA of the tomb. Now they are telling us to find the cost of the whitewashing. What they are telling us? Cost of the whitewashing. So let us see cost of whitewashing. Cost of whitewashing. So let us see what is the cost of the whitewashing. देखो तो in the case of the cost, what is the formula for finding the cost? Area multiply by rate. What is the formula? Area multiply by rate. So now we have found the area. What is the area of the tomb? That is 550 and the rate they have already given us 210 per 100 meter square. तो देखो the rate is 210 but they have given us this rate is for the 100 meter square. तो it will be divided by 100 है ना. ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना आपका कि जितने भी आपका लाइक 210 100 मीटर स्क्वायर का था, दैट्स वाई इट विल बी डिवाइडेड बाय 100. अगर वो 210 1000 मीटर स्क्वायर का देते किससे डिवाइड हो जाता? 1000 से. ठीक है, 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल. 55 मल्टीप्लाई बाय 21. तो लेटस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. 21 5 जो कितना होता है आपका 105 के 5 कैरी 10. 21 5 जा 105 एंड 10 115. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग? 1155 रुपीज. दैट इज आवर आंसर. ठीक है, हैव यू गॉट इट? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. In the 7th question, what have they given us? In the 7th question, they are saying us a joker's cave is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. तो देखो firstly let us make the joker cave. This is the joker cave which is in the shape of a right circular cone. The base radius is 7 cm and the height is 24 cm. तो the radius is 7 cm and the height 24 cm. ठीक है. And now what is he saying? Find the area of the sheet required to make 10 such cases. तो देखो हमें एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड निकालना है. तो फर्स्ट थिंग, जब भी हमें कोई केप आपकी बनानी है, कोई भी फिगर हमें बनाना होता है, इन दैट केस विल हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो फर्स्टली विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वन केप. और ऐसे ही हमें 10 केप बना के लानी है, तो हम क्या करेंगे उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. देन वी विल गेट कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच केप्स. तो लेट अस सी. The radius is already given to us 7 cm and the height is 24 cm. But actually problem is that we'll have to find the curved surface area. In case of the curved surface area, we need the slant height. So let us find the slant height L. क्या होती है slant height का फॉर्मूला क्या था आपका? L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और वी कैन से दैट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों का मीनिंग सेम है आपका, है ना. तो आर स्क्वायर, आर का मीनिंग क्या? आर की वैल्यू क्या आपके पास 7 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 24 स्क्वायर.
तो व्हाट विल बी गेट 7 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 49 प्लस 25 का स्क्वायर 576. सिमिलरली लेट अस ऐड देम. व्हाट विल बी गेट 49 प्लस 576 625. क्या आ जाएगा हमारे पास 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25. तो व्हाट इज द स्लेंट हाइट? दैट इज 25 सेंटीमीटर. स्लेंट हाइट कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर. अब हमें जोकर की केप बनानी है तो पहले हम निकालेंगे कि हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द वन केप. तो लेट अस सी हाउ मच एरिया के लिए क्या निकालेंगे हम लोग CSA ऑफ वन केप. CSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल. क्या है CSA का फॉर्मूला हमारा पाई आर एल. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7 एंड द एल स्लेंट हाइट इज 25. 7 से 7 कैंसल. देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 25 अभी हमने मल्टीप्लाई किया था. व्हाट विल बी गेट 550 मीटर स्क्वायर. 550 मीटर स्क्वायर. दैट इज द CSA ऑफ द वन केप. ऐसे हमें कितनी केप बनानी है 10 केप. तो लेट अस सी द एरिया ऑफ द 10 केप्स. एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 केप. एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 केप. एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 केप्स. फॉर 10 केप्स. तो देखो एक केप का एरिया है आपके पास कितना है 550 मीटर स्क्वायर. 10 केप का निकालना है तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 10 है ना. जब एक केप का हमने एरिया निकाल लिया 10 का निकालना है तो क्या होगा एक केप के एरिया में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो व्हाट विल बी गेट 5500 मीटर स्क्वायर. दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर. एवरीथिंग वाज इन सेंटीमीटर तो आंसर विल कम इन द सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. फर्स्टली टेक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ठीक है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made up of the recycled cardboard. Each one has a base diameter of the 40 cm and height is 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of the painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? मतलब क्या है समझो. इन्होंने क्या कहा कि एक आपका बैरिकेड, एक बस स्टॉप को इन्होंने बैरिकेड किया है. क्या किया है? बस स्टॉप को बैरिकेड करके रखा है फॉर मेकिंग सम, मतलब कुछ काम आपका चलता होगा तो बैरिकेड के लिए कुछ आपके कोन रिक्वायर्ड हुए. हाउ मेनी कोन्स आर रिक्वायर्ड? 50 कोन. उन्होंने एक कोन का आपका डायमीटर और हाइट आपको देख कर रखी है. देन यू विल हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. है ना. समझ में आया क्वेश्चन? एक बार वापस समझाता हूँ. समझिए कि एक बस स्टॉप को बैरिकेड करना उसके लिए 50 कोन रिक्वायर है. उन्होंने कोन की आपकी डायमीटर या रेडियस और हाइट वगैरह गिवन है हमें. देन हमें उस कोन को आपको बाहर से पेंट करना है. तो विल हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. तो पहले तो हम निकाल के लाएंगे व्हाट इज द कव्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि बाहर से जो पेंट होगा वो क्या होगा कोन का कव्ड सरफेस एरिया. वो क्या होगा कोन का कव्ड सरफेस एरिया. तो पहले हम वो निकालेंगे आपका. आफ्टरवर्ड्स विल फाइंड द रेट हमारे पास गिवन है तो हम विल फाइंड द कॉस्ट. कॉस्ट क्या होती है? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट. तो लेट अस सी हमारे पास क्या गिवन है. द डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर. डायमीटर है आपके पास 40 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 1 मीटर. हाइट है हमारे पास 1 मीटर. क्वेश्चन नंबर 8. तो देखो द डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर. तो व्हेन द डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस 20 सेंटीमीटर. हाइट हमें गिवन है 1 मीटर एंड जो कॉस्ट है वो किसमें गिवन है वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग. द कॉस्ट इज इन गिवन इन द रुपीज पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में है दैट्स वाई विल चेंज द रेडियस इनटू द मीटर. तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड 10 से 10 कैंसिल. व्हाट विल बी गेट 0.2 मीटर. डिनोमिनेटर में 10 है दैट्स वाई विल अप्लाई द पॉइंट बिफोर 1 नंबर. तो नाउ लेट अस सी CSA ऑफ वन कॉन. CSA ऑफ वन कॉन क्या हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर एल. मतलब विल हैव टू फाइंड द स्लेंट हाइट. क्या फाइंड करना है? स्लेंट हाइट. अभी हम लोगों ने पढ़ा स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो लेट अस सी आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 0.04 है ना. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4 और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0. तो 2 नंबर हो गए. 2 के पहले पॉइंट लगाना है दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड द पॉइंट बिफोर 2 नंबर. 1 का स्क्वायर 1. देन व्हाट विल बी गेट 1.04
एंड 1.04 का स्क्वायर रूट दे हैव ऑलरेडी गिवन अस। क्या है 1.04 का स्क्वायर रूट? 1.02। तो दैट इज द स्लैंट हाइट 1.02 मीटर। ठीक है, तो लेट अस सी पाई। पाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3.14, द रेडियस इज 0.2 एंड द स्लैंट हाइट इज 1.02। तो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई देम। आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम व्हाट विल वी गेट? जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली देखो आपके पास ऐसे 50 कौन से, तो ये तो आ गया सीधा आपका मीटर स्क्वायर में, यहीं पर छोड़ो, हमें तो कॉस निकाल के लानी है ना, आखिर में सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आपका CSA ऑफ 50 कॉन्स या पेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 कॉन्स, CSA ऑफ 50 कॉन्स क्या हो जाएगा? जो एक कौन का CSA आया उसमें आप 50 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वील हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें क्या करना है, इन कौन को आपका बाहर से पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी, क्या होता है कॉस्ट का फॉर्मूला? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया हम लोग के पास आ चुका है 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.02 और मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया है? 12 पर मीटर स्क्वायर। द रेट इज 12 पर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 12। हम सभी को आपको मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वील गेट 384.34 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, है ना। पॉइंट में आंसर आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।